ٹھیک ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من اللہ الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین ثم آمین انشاءاللہ تعالی. پتہ نہیں آپ لوگ ہیں، میرا خیال ہے پاکستان والوں کو پرابلم ہے اس میں آن ہونے میں، کیونکہ ان میں سے کوئی نہیں ہے اور میرا جا بھی نہیں رہا ان کو نا پورا. جا تو ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے آج، یا کوئی بات ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی پیدا کرے ہم سب کے لیے، کیونکہ بس ایک بہن ابھی آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہے انٹرنیٹ جام جو بھی ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا. ٹھیک ہے، ہم نے ہمس لیٹر کر لیے تھے کل، اور آج ہم نے جہر لیٹر کرنے ہیں. ہمس لیٹر سارے کور کر دیے تھے میں نے. تو ہمس کے لیٹر کیا ہے؟ فحثہ شخص سکت. فحثہ شخص سکت، یہ سارے ہمس کے لیٹر ہیں. اور ہمس میں کیا ہوتا ہے؟ ہوا باہر آتی ہے، باہر نکلتی ہے. جہر میں کیا ہوتا ہے؟ ہوا اندر ٹریپ ہوتی ہے، بند ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ آواز آئے گی تو آواز کے ساتھ ہی ہوا آتی ہے نا. تو آواز جو ہے، جب آواز بند ہوتی ہے تو ہوا بھی اس کی پیچھے بند ہوتی ہے. تو ہمس میں جب آواز چل رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس ہوا بھی یعنی باہر آ رہی ہوتی ہے بہت جلدی. تو ہوا کا ہی اس میں ہے سانس کا رک جانا، یعنی سانس جو ہے ہماری، سانس کا رک جانا، ہوا کا رک جانا، یا ہوا کا چلنا. تو انشاءاللہ جیسے سکت میں ہوتا ہے سانس جاری رہتی ہے اور آواز رک جاتی ہے، تو اس طرح جہر جو ہے اس میں ہم نے انشاءاللہ تعالی کیا مطلب ہے اس کا کہ ہوا کا روکنا یا رک جانا. جی میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ اس کی تعریف کیا ہے. ہوا کا روکنا یا رک جانا، پہلے جا خود روکنا یا رک جانا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس کو ادا کرتے ہوئے اس حرف کے جو بھی حرف ہو، جو کو بھی ادا کرنا چاہتے ہیں آپ، اس حرف کے قوی ہونے کی وجہ سے، یعنی مضبوط ہونے کی وجہ سے سانس کے بہاؤ کو روکنا، اور ایسا اس کے مخرج پر بھرپور انحصار کی وجہ سے ہوتا ہے. جب روکا جاتا ہے تو کیوں روکا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا مخرج جو ہے اس کے اوپر اس کا پورا انحصار ہوتا ہے، کمپلیٹ ریلائی کہاں کرتی ہے؟ وہ اپنے مخرج کے اوپر کرتی ہے. تو اس لیے اب ہمس کے اپوزٹ ہی ہے نا جی. تو ہمس میں سانس کے جاری رہنے اور جہر میں سانس کے چلنے، یعنی بہاؤ کے رکنے کا عمل جو ہے،
ये हमारी वोकल कॉर्ड जो है उसके खुलने और बंद होने की वजह से होता है। जैसे कि मैंने कल आपको तस्वीर भी दिखाई थी कि वोकल कॉर्ड बंद है तो जहर है, वोकल कॉर्ड खुला है तो हम्स है। तो इसमें क्या होता है कि हम्स में तो वो वाइब्रेशन की कमी होती है ना, क्योंकि उसमें दरवाजा बंद नहीं है, उसका वोकल कॉर्ड बंद नहीं है, इसलिए सांस ज्यादा होती है, हवा ज्यादा होती है। तो जहर जो है वो आवाज की, यानी जो वोकल कॉर्ड है व आवाज की रगें हैं उनको अम, उनको बंद करने की वजह से, जब बंद होने की वजह से ये पैदा होता है। जहर कब पैदा होता है? जब वो वोकल कॉर्ड बंद हो, तब ये जहर पैदा होता है। इसके साथ इनकी तेज हरकत जो है, वाइब्रेशन जो है, क्योंकि ये जाहिर है अब तेजी से भी आ रहे हैं मखरज में, तो इसकी वाइब्रेशन जो है वो इसमें शामिल होती है। इस तरह ज्यादातर सांस जो होती है वो कैद हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। तो फिर ये हम्स जो है पैदा होता है। तो इंशाल्लाह ताला आज हमने लेटर्स जहर के करने हैं। जहर के लेटर कितने हैं? 19 है इंशाल्लाह ताला। तो इन 19 हरूफ को हम आज कोशिश करेंगे कवर करने की। तो इंशाल्लाह, तो इन 19 में से सबसे पहला हर्फ जो है, हमारे लेटर्स जो है अगर निकाल लिए जाए 10, तो हमारे 19 रहते हैं। तो 19 में हम देखते हैं कि हमारा जो जहर है वो किन किन में हो रहा है। इंशाल्लाह ताला 1 मिनट मुझे दें ताकि मैं आपके लोगों के सामने, अगर मैं तस्वीर रख सकती हुई इसकी। 1 मिनट, क्योंकि जब आपके सामने लेटर्स होंगे ना तो लेटर का ये आसानी हो जाएगी, है ना, इंशाल्लाह ताला। तो 1 मिनट। वैसे तो हम अपने, हमें पता है सबको लेटर क्या है, लेकिन ये है कि कितने लेटर्स हैं और सारे इसमें हम देख सकते हैं, लेकिन ये है कि जब हमारे सामने खुले होंगे ना तो हमारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह आसानी पैदा करे, मुझे मिल जाए जल्दी से। खारिज हरूफ नूरानी कायदा, नूरानी कायदे में मैं लेती हूँ। इंशाल्लाह अभी मैं कायदा खोलती हूँ तो आप कायदे में देख सकते हैं। अभी मैं कायदा शेयर करने लगी हूँ आपके साथ इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि कायदा आपके सामने आ गया है। अभी मैं अल्फ़ाबेट रखती हूँ आपके सामने इंशाल्लाह। ये अरबिक अल्फ़ाबेट है, यानी अरबिक लेटर्स जो है, तो इनको यहाँ पे इंशाल्लाह। अब हमारे, हमने निकाल दिए कितने, जो सामने क्योंकि नजर आ रहे होंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी और मेरे लिए भी आसानी होगी देखने में इंशाल्लाह। तो हमारा फहस्सहु शख्सुन सकत में ता है, तो इसका मतलब हम जब अलिफ से शुरू करेंगे तो ये इसमें आ जाएगा अलिफ। अलिफ, तो ये हमारा हमजा होता है, क्योंकि इसकी आवाज अपनी नहीं है ना अलिफ की, तो हमारा हमजा जो है हम हमजा को लेंगे, ठीक है। तो जब हम हमजा को लेंगे, हमजा की आवाज हम पहले देखेंगे, तो
याद रहे कि जे ब्रीदिंग चैनल जो है जे बंद है इसमें, यानी कि जे वोकल कोड जो है वो बंद है, तो सांस को बंद होगा, ट्रैप होगी। ये इसका याद रखना है, जब भी हम करेंगे एक एक लेटर तो इसको याद रखना है, ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो हाँ, हमजा लें। हमजा में नेचुरल जहर पाया जाता है। हमजा जो है ये नेचुरल जहर लेटर है। कहाँ से अदा होता है? वो अक्सल हल्क से हमजा और हा अदा हो रहे होते हैं। तो हा चली गई कहाँ? हम्स में। हा हम्स का लेटर है और हमजा जहर का लेटर है। इनके जोड़ों में भी हम देखेंगे कि कौन सा जोड़ा किधर है। तो हमजा जो है जहर का लेटर है, इसमें नेचुरल जहर पाया जाता है, यानी कि रुकती है सांस, हवा रुकती है। आ आ रुक जाती है ना, ये मैं हमजा जज्म के साथ पढ़ रही हूँ, वैसे तो आ है ना, आ। तो हवा को निकलने की जगह ही नहीं मिलती इसमें। हमजा में हवा को निकलने की जगह क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जब हम उसको हिट करते हैं ना, बहुत मजबूती के साथ स्ट्रॉन्ग हिट होता है उसका, उसके मखरज पर, इसलिए मुकम्मल रिलाई करता है, मुकम्मल इन्हिसार है इसका अपने मखरज के ऊपर होता। तो हमजा जब साकिन हो, यानी साकिन में आए, तो हम्स ना होने पाए हमारा, जब जिस साकिन में आए तो क्या है कि इसकी आवाज, इसकी हवा बाहर ना निकलने पाए। मैंने हमजा की आपको दिखाया था वोकल कोड के किस तरह हमजा के लिए बंद होता है जब हम खारिज कर रहे थे। तो वो जो वोकल कोड है, तो इसको बिल्कुल बंद रखना है। यूं ही इसको जरा सा भी खुला हुआ, थोड़ी सी भी दरवाजे में दरार आई तो क्या होगा? वो हम्स हो जाएगा उसके ऊपर। तो हम्स होने से बचाना होता है। अगर आप अ, कर दिया तो ये बाहर आ गई, ये कलकले की तरफ चल गया, तो ये हमजा जो है इसमें कलकला नहीं पाया जाता। इसमें क्योंकि ये कलकला लेटर नहीं है, क्योंकि जब आप इसको करेंगे कि कलकला की तरफ ले जाएंगे, अ, आ अ, यानी कि वो रोकेंगे और फिर कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें अरबों ने कलकला नहीं किया, कलकला लेटर सिर्फ 5 हैं। तो जब इसमें कलकला नहीं किया अरबों ने तो हम भी नहीं कर सकते, ठीक है? उन्होंने इसकी सख्ती को बदलने की कोशिश की है इब्दाल में, जो कि अभी हमने किया नहीं, एडवांस लेवल का है इब्दाल या तस्हील। तो उसको बदलने की कोशिश की है अरबों ने इसमें, लेकिन इसमें कलकला नहीं किया। तो ये हमने याद रखना है। जब यानी कि इसमें आवाज नहीं, हम्स नहीं होना चाहिए, हवा बाहर नहीं निकलनी चाहिए, या आखिर में रिलैक्स करते वक्त जो आवाज होती है ना वो नहीं आनी चाहिए, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। कि मतलब क्या है? जब आखिर में जो आवाज होती है ना इसकी, वो रिलैक्स करते हुए की नहीं होनी चाहिए। जब रिलैक्स हो जाता है ना इंसान, वो रिलैक्स की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी आवाज और इसकी हवा पूरी तरह ट्रैप होती है, बंद हो जाता है जी। कुदरती जहर होने की वजह से हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है जब हम इसको अदा कर रहे होते हैं। जैसे यु मीनूना, यु मीनूना, अगर अब पहले तो लोग कहते हैं यू मीनूना, यू मीनूना, तो यू मीनूना नहीं है, क्योंकि इसमें एक यू मीनूना भी आता है सूरत बकरा के शुरू में ही, एक यू मीनूना, यू जब होता है तो ये हमारी आवाज ट्रैप हो रही है, तो इसको यू नहीं कर देना, ये गलती होने से बचाना है, ठीक है? तो इंशाल्लाह जब इसकी हम देखते हैं कि पूरी जोर से जब हिट हिट किया जाता है ना, तो आवाज रुक जाती है, तो आवाज को खत्म
कर देना है, जहाँ पे आवाज को खत्म कर देना है, आवाज बाद में आनी नहीं चाहिए। जब मखरज से बाहर आ जाते हैं तो आ की आवाज बाद में आ जाती है। तो आगे आते हैं हमारे फहस्साहु शख्सुन सकत में से हमारी इंशाल्लाह ताला हम बा है हमारी लेटर बा, बा अब अब बा अब बा अब बा अब बा। अब जब होता है, अगर हमें सिर्फ जज्म के साथ पढ़नी है तो ये मैं शद के साथ पढ़ रही थी। अब अब कलकला हो रहा है क्योंकि ये कलकला लेटर है। जब अब कहा आवाज बाहर आई तो हवा भी बाहर आ गई, क्योंकि हमने मखरज को खोल दिया, जिसकी वजह से ये हम्स हो गया। इसमें सॉरी, इसमें फहस्साहु शख्सुन सकत, इसमें जहर है। ठीक है, इसमें जहर है। अब क्योंकि रुकती है ना, अब जब आप कहते हैं तो रुकती है जाके, इसीलिए कलखला होता है, क्योंकि आवाज नहीं आ रही। तो ना हवा बाहर निकल रही है ना आवाज आ रही है, क्योंकि होंठ बंद है दोनों। तो अब कहाँ, दरवाजा तो बंद है तो वाइब्रेशन होगी। तो फिर जब खोलते हैं, परे करते हैं तो कलकला होता है। उसी वक्त ही फौरन ही परे कर देना है। किसी बहन का माइक है ऑन, उसको बंद कर दें प्लीज, म्यूट कर लें अपने आप को। तो हमजा जो है, बा जो है, सॉरी, बा में क्या होता है, ये कलकला हो जाता है फौरन हिट। फिर फौरन ही कलकला कर देना, यानी परे हटा देना है, होंठों को एक दूसरे से सेपरेट कर देना है, अलहदा कर देना है। तो ये हमारा बा है। अब अगर आप सख्ती से अब बा करेंगे तो ये हमारा गलत होगा, क्योंकि शद जब पड़ी जा रही होती है इसके ऊपर, तो हम क्या करते हैं, कई दफा बहनों को कहा जाए ना थोड़ी सी इसमें यानी कि शद वाली शिद्दत लाओ, तो वो क्या करती क्या है कि वो फिर अब बहुत सख्ती के साथ होंठों को बंद कर देती हैं। हालांकि इनको मजबूती से मिलाना है, मजबूती से मिलाना है, लेकिन उनके ऊपर जोर नहीं डालना। बस अब अब बस बंद ही करना है उन दोनों को, कि बाहर हवा ना आनी पाए और आवाज ना आनी पाए। तो यूं ही अब बा अब बा अब 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 फौरन ही छोड़ देना है। ठीक है, बा बा बी बू बा बी बू बा पहले बंद करते हैं, फिर उसी वक्त खोल देते हैं। बा बी बू अब 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 बा अब बा। आगे हमारे आते हैं जीम। जीम जो है फहस्साहु शख्सुन सकत में नहीं आती। जीम किस में आती है आगे जाके, जहर में। जीम जो है, ये मैंने जब इसका मखरज बताया था तो तब भी मैंने बताया था कि ये जुड़ जाता है, जाके वहां पे चिपक जाती है हमारी जुबान का दरमियानी हिस्सा। तो जब दरमियानी हिस्सा चिपक जाता है तो जाहिर है कि जीम जो है वो फिर उसमें रुकावट आ जाती है ना, मखरज जो है बंद हो गया है। आज 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 अब मैं कलकला नहीं कर रही। जब तक मैं कलकला ना करूंगी, मेरी हवा जो है आवाज के साथ बाहर नहीं आएगी। आज 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 आज। तो ये इस तरह फिर हमने करना है, यानी कि जब भी हम करें इनको जीम और ये या और शीन, जीम या और शीन हमने हरूफे शजरिया किए थे। वस्तुल लिसान से अदा होते हैं, है ना, कि दरमियानी हिस्सा जुबान का ऊपर तालू की तरफ जा रहा होता है। तो या के जो या के अंदर बाज औकात हम्स कर देते हैं हम, कि किस तरह या क्योंकि वो पूरी तरह लग नहीं होता ना, लग नहीं रहा होता, तो हम हवा को आवाज को बाहर निकाल देते हैं। तो इसको ठीक अदा करना है, बाहर नहीं करना, बाहर नहीं अदा, यानी कि आवाज या हवा बाहर नहीं निकलनी चाहिए। या के मखरज को फोकस करके पूरा उसके ऊपर ध्यान देकर उसको ठीक अदा करना है। थोड़ा सा आखिर वाला हिस्सा या का जो है
वो मखरज बनता है जो दरमियानी हिस्सा है ना ज़ुबान का, और जो तालु का दरमियानी हिस्सा है उस का बिल्कुल आखिर वाला दरमियानी हिस्से का आखिरी जो है पार्ट, तो वो या का मखरज है। या आप आई आई कहें, आई लीनिया, या लीनिया जो है, या लीन, उसको आई आई किधर जा रही है आपको पता चल जाएगा। या या ये यू, या ये यू। मैं जा नहीं कह रही, ठीक है, मैं जीम नहीं अदा कर रही। इसका ख्याल रखना है कि यूं ही आप इसमें सख्ती करेंगे तो जीम के मखरज पर चले जाएंगे। इसको ठीक पहचान इसकी करनी है, यानी कि इसको लीन जो है या लीन से पहचान करनी है। लीन क्या है? नरम जो होता है, यानी और जल्दी वाला। तो लीन में जबर आती है, हमजा के ऊपर, अलिफ के ऊपर जबर लगा के या के ऊपर जज्म लगा दे तो ये या लीन हो जाती है। अगर वाव पर जज्म होगी और उससे पहले हमजा पर जबर होगी तो ये क्या है? वाव लीन है। तो हम क्या अब कर रहे हैं? हरूफ शजरिया में से जीम, शीन और या, ठीक है। तो इनमें या जो है इसको लीनिया से पहचानना है, या लीनिया से पहचान कर सकते हैं आप। ये बॉर्डर लाइन है इसकी, ठीक है। हमारे मखरज जो इसका है, इसका आखिरी वस्तुल लिसान का आखिरी हिस्सा जो है और तालु का आखिरी हिस्सा किसका? वस्त का, दरमियानी हिस्से का आखिर जो है। जब जीम अदा होती है तो दरमियानी हिस्से का शुरू जो होता है वो वहां पे जाके लग रही होती है। शीन जो है वो फिर उसके आगे, और या उसके आगे। तो या जो है ये बॉर्डर लाइन है इसकी, ठीक है, बिल्कुल आखिर में दरमियानी हिस्सा जुबान का जहां से खत्म होता है, आखिर वाला हिस्सा वो इसका मखरज है। ये याद रखना है। ऐयान, आई आई पहले हरूफ लीन होता है जब आई कहते हैं। ऐयान, फिर नबर होती है, या के ऊपर फिर नबर भी होती है ना, ऐयान। तो इस तरह हमने बिल्कुल आगे वाला हिस्सा नहीं इस्तेमाल करना। कई दफा ये भी गलती इसमें होती है कि या वो बिल्कुल आगे वाला हिस्सा जो है बम्पी जिसो पार्ट जो होता है वो इस्तेमाल लोग करते हैं, वो नहीं करना, ठीक है। तो ये हाँ, जो इसका चैनल भी है, जो इसका वोकल कोड है, वे ये भी बंद होता है, तो हवा जो है ट्रैप होती है। जीम और या जहर है, दोनों में कॉमन गलती यही होती है, कॉमन गलती होती है, यानी दोनों में गलती का इम्कान है। कई दफा जीम को या पढ़ रहे होते हैं, कई दफा या को जीम पढ़ रहे होते हैं, कई दफा जीम के जब जीम को या पढ़ेंगे तो क्या होगा? जीम नरम पड़ी जाएगी, हालांकि जीम बहुत सख्ती वाला इसमें क्या है, जीम जो है जी हमारा कलकला लेटर भी है और जीम में सख्ती पाई जाती है। तो अगर जाहिर है कि या को जीम से अदा करेंगे तो जा तो वो कहाँ होगा? तो जीम को या से अदा करेंगे तो वो फिर बिगड़ जाता है ना। तो इसको बचाना है हमने बिगड़ने से इंशाल्लाह ताला। ये ख्याल यही रखना है कि इनका मखरज ठीक हो, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। ये हरूफ शजरिया हमारे हो गए। हरूफ हल्किया में से हमने यानी कि हरूफ हल्किया में से हमने हमजा और हा का किया। जो हा है वो तो हम्स में चली गई थी, वो हमने कल कर ली, लेकिन आज हमने हमजा का कर दिया था। फिर रह के हमारे आइन और हा हम्स की है। हा किसकी है? हम्स की। फहस्साहु शख्सुन सकत, वहां पे चली गई हमारी। और जो हमारा आइन है वो जहर का लेटर है। तो आइन को हम देखेंगे हरूफ हल्किया में से। आइन में कुदरती तौर पर जहर पाया जाता है, हमें लाना नहीं पड़ता इसमें, ठीक है।
कोशिश नहीं करनी पड़ती, आइन में जहर पाया जाता है। बाज़ औक़ात आवाज़ जो है, आवाज़ की डायरेक्शन जो है, आवाज़ का रुख जो है, वो ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से हम्स ऐड हो जाता है। जहाँ फिर आइन को हम ठीक अदा करते हुए हल्के दरमियान से आवाज़ को रगड़ते हुए निकालने की बजाय हम क्या करते हैं, जब उसको रगड़ के निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको मोटा कर देते हैं। तो आइन बारीक है। आइन के लिए स्माइली फेस होना चाहिए, जबड़ा नीचे होना चाहिए। आइन, आइन, आ, आ, आई, आई, जे मैं लीन पढ़ रही हूँ। आई, आई, आपको पता चलेगा कि ये कितना बारीक है, लेकिन जब हम आ, आ, करते हैं तो जी इसको मोटा कर दिया। इसको बचाना है मोटा करने से। आपका मुंह जो है स्माइली रहना चाहिए। जब भी करते हैं तो मुंह जब जबड़ा नीचे होता है तो आप स्माइल कर रहे होते हैं, तो ये आइन जो है फिर अच्छी तरह अदा हो जाता है। तो इसमें हम्स नहीं लाना, यूं ही इसमें हम्स लाए, इसकी हवा यानी बाहर निकाल दी, तो डायरेक्शन हवा का बदल जाएगा, आवाज का भी बदल जाएगा। तो इसको हमने गैन कई दफा आइन अदा करते हुए गैन में भी चली जाती है मखरज में, तो ये भी बचाना है इसको, क्योंकि आइन जहर कुदरती पाया जाता है, जैसे हमजा में कुदरती जहर पाया जाता है, इसमें भी कुदरती नेचुरल तौर पर जहर पाया जाता है। हमें एक्स्ट्रा लाना नहीं पड़ता, तो सिर्फ इसको इसका डायरेक्शन ठीक रखना है, रुख आवाज का, हवा का ठीक रखना है। जब आवाज का रुख ठीक होगा तो हवा ऑटोमेटिकली ठीक रहेगी, उसको बाहर नहीं निकालना, उसमें हम्स नहीं करना। आगे हम आते हैं हल्के लेटर गैन की तरफ, क्योंकि खा जो है वो हमारा हम्स में चला गया था। गैन और खा, आइन और हा जो थे कहाँ से थे, दरमियानी हल्क, वस्तुल हल्क से। तो अब हमारे गैन और खा अदनुल हल्क से हैं, यानी कि करीबी किनारा जो है हमारा हल्क का मुंह के करीब है। तो गैन और खा, काफ के मखरज के करीब खा का मखरज है, काफ, अक, जो अक क्या है, काफ दो नुक्ते वाला, उससे पहले है खा का मखरज, और गैन जरा सा उसके नीचे है, लेकिन वहां पे ही है। ये हल्का अदनल हल्क से ही हैं दोनों, यानी एक दूसरे के हमसाए हैं, बस ये कह सकते हैं, जगह एक ही है, हमसाए हैं। तो घर एक है, कमरे मुख्तलिफ हैं, जी आप कह सकते हैं। गैन में जहर है, और कॉमन गलती क्या होती है कि गैन के अंदर हम्स कर देते हैं, गा गा। ये कैसे करते हैं, जब हम गैन को अपनी जुबान और तालु से अदा कर रहे होते हैं, गा गा गा, जुबान को ऊपर की तरफ भेज रहे होते हैं, हालांकि ये जुबान का ये लेटर ही भी नहीं है, ये हल्क का लेटर है। तो हल्क से आवाज आनी चाहिए, गा गा गा, पीछे से। जुबान का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जुबान की जड़ ऊपर उठती है, क्यों, क्योंकि गैन मोटा लेटर है, खुद सदाकतिन क़िज़ में से गैन है, तो इसमें जहर पाया जाता है। इसको यानी कि जब नरमी से टच करें तो अ, यानी कि हिट जो है वो नरमी से करें, तो सांस बंद करके रखनी है इसमें, और अम, ये स्ट्रॉन्ग हिट है, ये ऐसे रिलाई कंप्लीटली अपने मखरज पर करता है, यानी इन्हिसार इसका मखरज पर होता है, जैसे कि तमाम जहर लेटर का है। तो इसमें भी ए, क्या होता है कि एम, ए, गाई 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 क्या है, ये लीन है। आगा आगा आगे आगो आग, जहाँ पे मैंने होल्ड किया हुआ है, अगर मैं आग आग कर दिया तो क्या होगा, हवा बाहर आ गई, हम्स हो गया। हमसे बचाना है इसको। तो इसमें हवा को बाहर निकलने बिल्कुल भी नहीं देना। गैन को जो टच है इसमें
यानी इसमें इस बात का ध्यान रखना है, इसमें इस तरह इसको देखना है कि जब हम जज़्म के साथ इसको अदा कर रही हूँ, तो क्या करना है, इसमें जो हम्स है वो ना आने पाए, हवा को बाहर धकेलना नहीं है। जैसे हा के लिए बाहर मैंने कहा ना कि हा जो है हम्स इसी तरह उसमें इसी वजह से उसमें पाया जाता है क्योंकि आसान के साथ उसकी हवा फील हो रही होती है बाहर। तो अगर हा की तरह आइन को बाहर धकेलेंगे उसके मखरज को तो क्या होगा, हवा को या आवाज को, तो क्या होगा, ये फिर हम्स इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखना है। जो मैंने आपको बताया था कि 2 हिस्से इस्तेमाल हमेशा हो रहे होते हैं एक हर्फ को निकालने के लिए। तो अब ये क्या है कि जो हमारा थ्रोट है, जो हमारा गला है, हल्क है, इसके दोनों वॉल्स जो हैं, दोनों दीवारें जो हैं, वो एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं। एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं, तो प्रेशर आ जे आइन था, सॉरी, आ आ गा गा गा, ये एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं। जब हम आ कहते हैं, आप ये याद रखें कि जब हम साकिन हर्फ पढ़ रहे होते हैं, कोई हर्फ भी हो, जब हम साकिन पढ़ रहे होते हैं तो ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जो 2 पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के, 2 हिस्से मखरज के लिए जो होते हैं, ये एक दूसरे की तरफ जा स्क्वीज कर रहे होते हैं। जैसे गाइन है, या फिर ये है कि आइन भी ऐसे ही अदा होता है, या फिर क्या होता है, वो एक दूसरे से हट रहे होते हैं। तो जब जज्म वाला लेटर अदा करेंगे तो ये एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं, या टच कर रहे होते हैं, या लगे होते हैं। लेकिन जब हम हरकत जबर जेर पेश वाला लेटर कोई भी अदा करते हैं तो ये एक दूसरे से हटते हैं, पीछे हटते हैं। ठीक है, जो मखरज है, 2 मखरज जो एक दूसरे से पीछे हटते हैं, परे हटते, अलग होते हैं। ठीक है, ये इसका हर लेटर को अदा करते हुए इनकी सिफात का ये ख्याल रखना है। और याद भी रखना है कि जज़म में ये एक दूसरे की तरफ आएंगे, टच हो जाएंगे, या फिर उसके साथ प्रेशर उसकी तरफ डालेंगे उसकी तरफ आने के लिए। लेकिन हरकत में ये एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारे हो गए हरूफ हल्की। अब आते हैं काफ और कैफ की तरफ। कैफ जो है, जी हमारा कैफ हमने कब किया था, हम्स में। फहसाहू शख्सुन सकत, और का और ता का मैंने बहुत अच्छी तरह बताया था। अब आता है काफ। अब काफ जो है, इसमें जहर पाई जाती है काफ में। कौन सा, 2 नुक्ते वाला काफ, मोटा काफ जो है, डीपेस्ट पार्ट जो है जुबान का, टंग का, वो इस्तेमाल होता है। हरूफे लिहातिया हम कर रहे हैं अब, ठीक है, उनके जोड़े भी याद रखें। हरूफे लिहातिया, हरूफे लिहातिया में से कैफ जो है वो क्या है, हम्स का है, और काफ जहर का है। तो हम काफ कर रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसमें कॉमन गलती क्या होती है कि इसका यानी क्योंकि इसका जो इन्हिसार रहता है वो कंप्लीट रिलाई ये अपने मखरज पर करता है। इन्हिसार इसका मुकम्मल अपने मखरज के ऊपर होता है। तो जब मखरज को हिट करता है, आक आक आक, अब आवाज नहीं आ रही तो हम कलकला करेंगे तो इसकी आवाज आएगी। ठीक है, जब आवाज आएगी आक आक आक, हवा बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर कलकला हो जाएगा। ठीक है, कलकला होता है इस पर। जब कलकला नहीं किया जाता तो इसके पता नहीं चलता कौन सा काफ आप अदा कर रहे हैं, यानी इसके मखरज का पूरी तरह पता नहीं चलेगा।
जब इसकी आवाज को हम ट्रैप ही रखेंगे, बंद ही रखेंगे, तो इसको छोड़ना है। हार्ड हिट यानी सख्ती से उसको हिट करना है मखरज को, और फौरन ही छोड़ देना है। तो इसमें बड़े आराम से हम्स आ जाता है जब इसको पूरी तरह हिट नहीं होता ना। जब हम हिट को कमजोर कर देते हैं, जब हम मारते हैं तो पूरी मजबूती के साथ नहीं मारते, तो इसमें हम्स आ जाता है। तो इससे बचाना है, मुकम्मल तौर पर इसको वहां पे हिट करना है मजबूती के साथ। काफ और हमजा में सेम आवाज आती है। आवाज इसकी जैसे अक, क, क, आ, आ, वो उधर से आवाज आ रही है। तो सेम सिमिलर आवाज आती है। यू मीनून, यू मीन, यू पीनून, झटका सा जैसे लगता है इस तरह सा। तो इसका जो रिलायंस है कंप्लीट वो मखरज में है, मखरज के ऊपर है। जैसे यानी कि इन्हिसार किसका है, मखरज के ऊपर। क्योंकि हमजा में भी जो है ना काफ की तरह जैसी आवाज आती है काफ की सी, अगर इसको टच करते वक्त जरा सा भी नरम कर दें, हमजा की मैं बात अब कर रही हूँ, हमजा हमने किया है, लेकिन इसमें यानी कि जब काफ से इसको अलहदा करना है, काफ की तरह इसकी आवाज होती है जब आप जज्म के साथ अदा कर रहे होते हैं, सॉरी हमजा की तरह। और काफ हमजा और हमजा काफ, काफ है ना, अक, 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 और आ, 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 इस तरह। अगर अ, क कर देंगे तो का तो कलकला की तरफ बढ़ जाएगा, लेकिन पूरा नहीं हुआ। लेकिन हमजा जो है वो गलत हो जाएगा, उसको हम हम्स कर देते हैं, उसके ऊपर हम्स नहीं करना। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। इसमें भी जब पूरी तरह हिट नहीं करते मखरज को, तो हवा ऐड हो जाती है, हवा उसमें आ जाती है, काफ की तरह फिर नरम पड़ा जाता है। तालु की बजाय नरम तालु से जो हम काफ है, उसको काफ को नरम तालु की बजाय हम क्या करते हैं, फिर सख्त तालु से पढ़ देते हैं। तो इसको बचाना है इससे। नंबर एक इसमें क्या है कि सख्ती से हिट करना है, सख्ती से लगाना है मखरज पर। नंबर दो, जुबान की जड़ जो है बिलमुकाबल नरम तालु से लगाएं, तो जी फिर अदा होगा। ठीक है। आवाज में जब साकिन होगा तो अक, अक, का, अक, का, अक, का, अक्गी, अक्कू, अक्कू, अक्का, अक्की, अक्कू। मोटा है ना, अक्का, अक्की, अक्कू। अब इसकी मोटाई की तरफ भी, यानी कि इसके पहले मखरज को गौर करें, फिर इसकी मोटाई को लाएं। क्या मेरी जुबान ऊपर है, मेरी जुबान जोड़ रही है अच्छी तरह, कहीं हवा तो नहीं आ रही, कहीं मैंने बंद। कहा जाता है कि जब खाफ हम अदा करते हैं तो 1 सेकंड के लिए हमारी सांस बंद हो जाती है, क्योंकि हवा जो है बिल्कुल बंद होती है, मखरज पूरा मजबूती के साथ जुबान ने पकड़ा होता है, जनीन के नरम तालु। तो फिर गड़बड़ वहां पे नहीं करनी चाहिए, कमजोरी से लगाएंगे तो वहां पे हवा हमारी बाहर निकल आएगी। अब आप हम आते हैं, क्योंकि जब जीम का हमने कर लिया, हरूफ शजरिया में से जीम कर ली, तो ये थोड़ा सा इनको जब देखते हैं ना गौर फिक्र से, तो फिर हमें पता चलता है कि जैसे जीम के लिए जहर का तरीका भी यही है कि सुपर हिट करना है, उसको सख्ती के साथ लगाना है, स्ट्रोंग लगाना है, उसमें कमजोरी से नहीं लगता। जैसे काफ और हमजा है, जीम भी कमजोरी से नहीं लगता। तो इनके साथ अगर इनको देखें आप, तो ये भी इन्हीं का सेट जैसे बनता है ना, तो एक सेट मजबूत हिट करने का एक इनका हो जाता है। तो ये जाहर के 19 लेटर जो है, इनमें मजबूती से ही लगाना होता है, या उसकी तरफ मखरज की तरफ बढ़ते हैं। तो
दरमियानी हिस्से से जो जीम जो है, जाहिर है दरमियानी हिस्से से शुरू होता है, वहां से जब आ रहा होता है तो दरमियानी तालु जो है उसको सख्ती मजबूती के साथ से लगता है, और रैपिड सेपरेशन होती है, यानी कि बहुत जल्दी इसको अलग कर दिया जाता है। हिट करने के बाद फौरन परे कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने अक्का किया है, ऐसे ही अज्जा, अज्जू, अज्जी, जे इनके साथ जीम का भी फिर आ गया, क्योंकि जीम अभी मैंने किए थे, तो इसलिए क्योंकि ये सख्ती से तीनों ही होते हैं। हमजा और काफ जो है ये एक दूसरे से, इनकी आवाजें जो है वो सेम है, सिमिलर होती हैं, सेम सी, आ जैसे वो है और ऐसे ही आ भी है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या रह जाता है। हमारे हरूफ शजरिया हो गए, हरूफ लिहातिया हो गए, दाद आ गया, दाद आ गए, हरूफ हर्फ हाफिया, दाद। तो दाद जो है इसमें क्या है कि नोट बहुत अच्छी तरह इसको करना है कि हम कहाँ पे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि मोटा हर्फ है, मोटाई इसमें आएगी। इसमें जो है, आप कहते हैं कि इसमें हमारी पर्सनैलिटी भी नजर आ रही होती है जब हम दाद अदा कर रहे होते हैं। तो दाद में सबसे पहले दाद का मखरज देखना है। दाद में भी हवा को रोका जाता है, लेकिन दाद के अंदर ये कॉमन गलती आ जाती है कि इसमें आसानी से हम्स ऐड हो जाता है, इसलिए दाद को भी बहुत एहतियात से पढ़ने की जरूरत होती है। ठीक है, जब भी हम पढ़ते हैं बहुत एहतियात बरतते हैं इसके साथ। इसका जहर जो है नरम हिट से होता है, जैसे जीम और काफ और हमजा का था सख्त हिट से, इस तरह इसका सख्त हिट से नहीं है, इसका नरम हिट से होता है। दाद का जहर नरम हिट से होता है। ठीक है, हम क्या कहते हैं, जुबान की हाफतुल लिसान को, जुबान की करवट को, मोटा जो हिस्सा है वो दाढ़ों से लगा देते हैं। तो ये इसमें गलती करने से बचाना है, इसमें हवा नहीं आनी चाहिए, और दाद का मखरज जो है जुबान के किनारे जो है, जैसे जुबान 3 हिस्सों में डिवाइड करे तो तकरीबन 2 हिस्से तकरीबन इसके आ जाते हैं, उसमें ऊपर वाले नवाजिज को लगते हैं, और 4 दाढ़ें जो हैं उनको भी लगते हैं, दवाहिक को भी, और ए, ए, 4 दाढ़ें जो इसकी हैं, 5वीं तो आगे से है, एक साइड की, और वही 4 दूसरी साइड की दाढ़ों, यानी कि एक साइड या दूसरी साइड मैंने बताया हुआ है कि इसके मखरज जब मैंने बताया था, या दोनों साइडों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लगा रहे हैं दौद के लिए। वहां कुछ देर लगी रहती है जुबान, तो ये इसका नरम हिट और हवा को बाहर आने से रोकना है। ठीक है, वहां पे लगी रहती है, अद अद, आप कहें अद द, अद द, अद्दी, अद्दू। अगर अद्दा अद्दी अद्दू कर रहे हैं तो ये दाल है। ठीक है, तो दाल से भी बचाना है, और वो भी, उससे भी बचाना है कि अगर आप जवाद कह रहे हैं या जौद कह रहे हैं तो उसको जौद जौद बिल्कुल फिर वो वहां पे ही लगना चाहिए, नहीं लगता तो मखरज गलत है, फिर कोई और पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, इसका मैंने आपको अलग अलग करके बताया था कि किन हरूफ से जी मिल जाता है। तो वहां पे नरमी से हिट होता है, लेकिन चिपका देते हैं। ठीक है, तो फिर हवा को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती दाद के लिए। ठीक है, जैसे वल और द, वल और द,
تو اس میں را جو ہے، را میں آگے کی طرف، اردو میں را بھی ہے نا، تو را میں آگے کی طرف جائیں گے اور پھر پیچھے کی طرف واپس جائیں گے زبان کو دعد کہنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یعنی کہ جیم، عین، جیم، حمزہ اور قاف میں سخت ہٹ ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے، یاد رکھنے کی بات ہے۔ دعد میں ایسا نہیں ہوتا، یہ بے شک موٹا لیٹر ہے لیکن اس میں نرمی سے ہٹ ہوتا ہے۔ اس کا چپکا لیتے ہیں اس کو وہاں پہ، جیسے جیم کا ساتھ چپکتا ہے جا کے، باقی جو ہے تین ان کے ساتھ ایسے ہی چپکاتے ہیں، لیکن ہٹ اس کا نرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دعد میں سارے ایریا کو کور کیا جاتا ہے جتنا بھی وہ ہے داڑوں کا۔ تو داد میں غلطی کیا ہوتی ہے کہ اس میں زبان کی نوک استعمال کرتے ہیں پھر لوگ، زبان کی نوک، کیونکہ پیچھے سے موٹا نہیں کیا جاتا نا، تو زبان کی نوک کو استعمال کر لیتے ہیں اس داڑوں کو، یعنی حافۃ اللسان کی بجائے زبان کی نوک استعمال کی جاتی ہے، تو یہ غلط ہے، اس کو غور سے خیال سے پڑھنا ہے کیونکہ ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ پھر ہم اگر غور نہیں کرتے تو حرف بدل سکتے ہیں، اگر غور و فکر سے لگاتے نہیں ہیں ہٹ تو یہ ہے کہ کوئی اور آواز آ سکتی ہے، یا پھر ہم زبان کی جڑ تو اس کے لیے ہر وقت اوپر اٹھے گی، یہ یاد رکھیں۔ خود صداغتن قز، جتنے 7 حروف ہیں موٹے، ان میں ہر حال میں زبان کی جڑ اوپر اٹھتی ہے، چاہے وہ زیر کی حالت بھی ہو۔ تو جب اوپر اٹھنے کا ان کا ہلکا، جب زیادہ بھاری ہونا زبر میں سب سے زیادہ موٹا ہوتا ہے حرف، پیش میں اس سے کم، زیر میں اس سے کم، لیکن ہم اپنی طرف سے موٹا ہی اس کو پڑھتے ہیں۔ آگے آتے ہیں حروف ترفیہ، کیونکہ ہم حرف حافہ کیا ہم نے، حروف ترفیہ میں بالکل وہی آپ کو دے رہی ہوں، ایک جو ان کی ہے حروف ترفیہ میں ہم نے فحثہ شخص سکت، کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے حروف ترفیہ میں سے لام، را، لام، نون اور را، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے ہمارے حمز میں آتا، تو یہ سارے جہر کے لیٹر ہیں حروف ترفیہ۔ تو حروف ترفیہ لام کا سامنے کا حصہ جو ہے، لام سب سے پہلے ہم کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبان کا سامنے کا حصہ استعمال کرتے ہیں، اس کی سی شکل جو ہوتی ہے، سی شکل، سی انگلش والا سی جو ہے، جیسے شتری بھی آپ کہہ لیں، جب ہم شتری استعمال کرتے ہیں تو شتری میں کیا ہوتا ہے، وہ بالکل راؤنڈ سی کی شکل اس کی اوپر سے بنی ہوتی ہے، تو وہ حصہ ہم استعمال کرتے ہیں دانتوں کا، ٹھیک ہے۔ اور اوپر والے دانت جو ہے ہمارے، اوپر والے دانت، نیچے والے نہیں، اوپر والے دانتوں کا سی شکل، شتری کی اگر آپ سی نہ یاد رکھیں تو شتری سے یاد رکھ لیں۔ زبان کا طرف اللسان استعمال ہوتا ہے، تو گم ایریا پہ لگتی ہے اوپر مسوڑوں سے، ٹھیک ہے، گم ایریا پہ، اوپر کے جو گم ایریا ہے 8 دانتوں کے وہاں پہ، تو لام وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اس کی زبان کی بھی سی شکل ہوگی اور دانتوں کی بھی سی، ٹھیک ہے۔ زبان بھی وہی، کیونکہ 8 دانت ہیں تو وائڈر رینج میں پوری طرف اللسان پوری کی پوری لگ رہی ہے، تو کیا ہوگا پھر اس میں وائڈ رینج میں لگے گی نا، اس کی بھی سی شکل ہی بنے گی، دونوں کی، زبان کی بھی اور جو اوپر والے دانت ہیں ان کی بھی سی شکل پوری کی پوری لگتی ہے، جہاں تک سی کی شکل میں ہمارے 8 دانت پھر آ جاتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ زبان کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے نا، تو یہ آگے والا حصہ ہے، 2 حصے ہم پڑھ چکے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو زبان کو پھر حافت اللسان چھوڑ کر طرف اللسان میں کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری جو حافت اللسان ہے
इसमें इसका भी एक लेटर जो है, एक सॉरी दांत जो है वो तरफुल लिसान में लाम में हम इस्तेमाल करते हैं। तरफुल लिसान और हाफतुल लिसान का एक लेटर, एक लेटर में बार बार कह रही हूँ, एक दांत, ठीक है। तो वो भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे मैंने दौद के लिए मखरज बताते हुए बताया था कि जे लाम का भी एक दांत लेता है, इसी तरह लाम दौद का एक दांत लेता है, यानी जे शेर फिर कहते हैं। तो लाम को भी गम पर लगता है, ये भी यानी उस पर मसूड़े पर एल ला एल ला जेंटल हिट करना है, यानी कि सॉफ्टली है, थोड़ी सी नरम है। इसमें सेक्सी से अल्लाह नहीं करना, अल्लाह ये वैसे भी बिगड़ जाता है। अल्लाह करें तो ये तो जुबान की पुश्त लग गई ना, ऊपर से जुबान ऊपर से लग गई, फिर तरफुल लिसान नहीं लगती, जुबान की तरफें नहीं लग रही होती सारी, बल्कि जुबान की पुश्त लग रही होती है जब उसके ऊपर सख्ती की जाए। हमने लाम के ऊपर सख्ती नहीं करनी जब शद अदा कर रही हूँ। वैसे भी ला 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 बहुत नरम लेटर है, तो बारीक भी है। इसमें कुदरती यानी नेचुरल जहर लेटर है, ये भी नेचुरल जहर पाया जाता है, हमें कहीं से लाना नहीं पड़ता। जब जोर से दबाने लग जाते हैं तो जोर ज्यादा लगाकर जुबान को लगाने से कहीं ना कहीं हम्स भी आने लगती है, तो हम्स से बचाना है, इसको हवा बाहर निकलने से बचाना है। तो मैं क्यों कह रही होती हूँ, जब बहनें पढ़ रही होती हूँ तो मैं कह रही होती हूँ ना कि मखरज से बाहर नहीं जाना लाम के, यानी वो सी शक्ल में ही रहना है। यूं ही आप सी शक्ल से परे हटे, जुबान को परे हटाया तो उसमें हवा बाहर आ गई, तो हवा जब बाहर आई तो क्या होगा, गड़बड़ हो गई ना। तो इसलिए हमने हम्स कर दिया, उसमें हम्स नहीं करना, हवा बाहर नहीं आनी। मॉडरेट हिट, जैसे दरमियानी हिट, दरमियानी इस पे जाके लगता है, मॉडरेट हिट होता है, ठीक है। तो फिर अल अल ला अल ला थोड़ा सा मुस्कुराहट के साथ होता है, ठीक है, मुस्कुराहट वाला फेस होना चाहिए आपका, जिसको हम कहते हैं स्माइली मुंह, मुस्कुराना, मुस्कुराने वाला मुंह। तो आसानी से लग जाता है जाके, कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। हल्का सा स्ट्रेच भी करते हैं ना, थोड़ा सा स्ट्रेच भी करते हैं, अल्लाह स्ट्रेच कहते हैं, क्योंकि जुबान को जब स्ट्रेच होता है तो फिर ही पूरे 8 दांतों से लगेगी, फैल के लगेगी, ठीक है। तो इसको आवाज जो है लाम में जुजवी तौर पर जारी रहती है, ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ये लाम का हमारा मखरज हो गया। अब आते हैं हम नून के मखरज में। नून का जो है, नून में हम्स पॉसिबल नहीं है, नून में हम्स आप नहीं लाते, आमतौर पर हर एक का ठीक होता है, हम्स नहीं आता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जुबान की नोक और ऊपर वाले जो दांत हैं, उनके 6 दांत भी 6 दांत हैं होते वाइडर रेंज में, लेकिन जब आप कहते हैं ना 2 दांत को भी गम एरिया ये लेता है, 2 दांतों का भी गम एरिया कवर करता है जी। अन वैसे फैला के जिस्म के साथ लगा रहा होता है, अन्ना ना, जब ना कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ 2 दांतों से लगा है, जब आप अन कह रहे होते हैं तो जी 6 दांत कवर कर रहा है। तो इस तरह इसकी आवाज को पहचाने, सांस को जो है हवा को बाहर नहीं आने देता है, एन ये बिल्कुल रोक लेता है, पॉसिबल नहीं है ना, हम्स नहीं होता। कुदरती जहर लहटर है जिसको याद रखना है, आवाज बाहर नहीं निकालनी, नाक की तरफ आवाज को ले जाना है। आवाज ऑटोमेटिक अन जब कहते हैं तो वो नाक की तरफ आवाज जाती है, वो मुंह से बाहर नहीं निकलती क्योंकि मखरज बंद है आगे से। तो आगे इसमें फिर यानी कि अगर
2 से ज्यादा दांत भी इसमें लगते हैं तो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारे 6 दांतों का मैंने कहा ना, तो इसमें जब अन भी कह रहे हूँ, आप कहें कि मेरे तो 2 से ज्यादा दांत लग रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 6 दांतों का लेटर है। अब हम आते हैं रा की तरफ। ये तरफुल लिसान का आखिरी लेटर है। नून की तरह ही रा भी है। इसमें ज्यादा एरिया को यानी नून को ज्यादा एरिया कवर करता है, और रा को जुबान की पुश्त भी लगती है। रा के लिए नोक के साथ साथ पुश्त भी गाम एरिया पे लगती है, लेकिन इसके हवा बाहर नहीं आनी चाहिए। इसमें एक सिफत और पाई जाती है इन्हिराफ की, जो हमारी सिफात जो है, ये ए, क्या कहते हैं, एक लाजमी है, एक आर्जी है। तो ये इसकी आर्जी सिफत भी इसमें पाई जाती है। जो हम आर्जी सिफात जब हम करेंगे तो उसमें करेंगे, इन्हिराफ पाया जाता है इसमें। तो जनी के इसकी आवाज किनारों से होती हुई बाहर आ रही होती है। किनारों से जब लगी होती है ना जुबान वहां, तो इसके किनारों से आवाज जो है वो बाहर आ रही होती है। तो टिप प्लस टॉप, अगर इंग्लिश में समझ आए तो टिप प्लस टॉप क्या है? टिप जुबान की नोक और पुश्त दोनों ही लगती हैं। इसकी अदायगी में जुबान को रोल करके सारा हिस्सा लगा दे तो ये गलत है। क्योंकि लोगों को कहा जाए कि मोटी रॉ पढ़े, तो वो क्या करते हैं, रॉ 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 ऐसे करते हैं। सारी जुबान को इकट्ठी करके एक थोड़ा सा टच करते हैं ऊपर वाले दांतों के गम एरिया पर, तो ये गलत है। ठीक है, ये ऐसे नहीं करना। इसमें ज्यादा तकरार भी नहीं करना, और भी नहीं करना, ये भी गलत है। तो इसको राय मजहूरा जो है, ऊपर वाले 2 दांतों के दरमियान उबरी जगह पर जुबान लगती है। इसमें रॉ 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 अर रा। जब अर कह रहे होते हैं तो 4 दांत इस्तेमाल होते हैं। अर रा। जब आप रा की तरफ आते हैं, अर री री। जब री की तरफ आते हैं तो वो फिर जो उबरी हुई जगह है वहां पे चले जुबान सिर्फ होती है। जुबान की पुश्त और जुबान का किनारा आगे वाला, नोक से। इसकी गलती क्या है कि जुबान को रोल करके नहीं लगाना, इकट्ठा करके जुबान को समेट के नहीं लगाना, वरना जे क्योंकि जे अब रू 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 भी करते हुए, क्योंकि पेश में जब इसमें ज्यादा गलती होगी, पेश में रू 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 क्या है, मैंने गोल मुंह किया है बस, रू रू वहां पे भी लगना चाहिए। रू में भी 2 दांतों पे जे लगता है, 4 को नहीं कवर करता। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। इसको कमजोरी से नहीं लगाना, वरना इसमें क्या हो जाएगा, रिखावा आ जाएगा। रिखावा अभी हमने किया नहीं है, यानी कि आवाज जो है वो बाहर चली जाएगी, इसकी आवाज को बाहर नहीं जाना, वहां पे रोकना है। और रा, जब रा कहेंगे तो फिर ये रा रा वहां पे भी जाके रुकती है। ठीक है, तो इसको कह के देखे। और मोटा है जब जबर के साथ और पेश के साथ होगा, और रा और री और रू। सारा प्रेशर टिप पर होना चाहिए इसका, यानी कि जुबान की पुश्त जो है उसके ऊपर सारा प्रेशर होना चाहिए। इसका हिट भी मॉडरल है, दरमियानी सा है। दरमियानी के साथ बहुत जोर भी नहीं लगाना, सख्ती से भी नहीं लगाना, और बहुत नरम भी नहीं लगाना, कमजोरी से भी नहीं आना चाहिए। मॉडरेट सा हिट है, जैसे लाम का है। तो वो अगर आप ऐसे जोर से ना, बहुत कमजोरी से, दरमियानी हिट से होना चाहिए। तो इनमें नून और रा में क्या फर्क है? नून हरफ तरफिया है और रा हरफ सफीरिया है। नून हरफ तरफिया है और रा हरफ सफीरिया है। क्यों? क्योंकि इनका मखरज मुख्तलिफ है।
सॉरी, हरा हरफ सफीरिया नहीं है, फा कौन सा है, जा हरफ सफीरिया है। मैंने गलत बोल गई हूँ, गलत बोल दिया मैंने, अस्तगफिरुल्लाह। मैम तो जल्किया है, हरूफ जल्किया। वो जा है, जाल है, रा। रा। अच्छा, ये भी हरूफ है। हरूफ जलकिया या तरकिया और तरफिया, इनको दोनों ही कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम जलकिया है, ठीक है। हाँ जी, इसके दो नाम हैं, जैसे हरूफे लाजिमा, सिफाते लाजिमा या सिफाते असलिया भी कहते हैं। तो मैंने असलिया आपको बताया नहीं, ठीक है। सिफात को भी आप सिफाते लाजिमा या सिफाते असलिया कहते हैं, ठीक है। तो इनके नाम दो भी हैं, ठीक है। जलकिया भी है इसका नाम। तो ये तरफिया, तो मैम ये तरफिया कहलाएगा, हरूफ तरफिया में से है। हरूफ हरूफ जलकिया या हरूफ तरफिया दोनों ही कह सकते हैं, क्योंकि दो नाम है इसके मखरज के, ठीक है। ओके। इसके दो जी जी। नाम है, इस सेट के दो नाम है। मैंने आपको एक दिया था, मैंने बताया था आपको कि मैं बहुत थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही हूँ आपको देने का, एकदम नहीं बहुत सारा दे रही। तो नाम भी कुछ मैंने आपको पूरे बता दिए, कुछ ये इसका आपने खुद अल्हम्दुलिल्लाह याद करके मुझे बता दिया, तो इसमें ऐड हो गया, वरना मेरे जहन में आज नहीं था बताने के लिए। हरूफ जलकिया में से है, और हरूफ तरफिया भी इनको कहते हैं, क्योंकि तरफुल लिसान लगती है ना, इसलिए इनको हरूफ तरफिया भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब इनके जो फर्क है वो हम बाद में देखते हैं। अब कौन सा हर्फ रह गया है वो मैं देख रही हूँ। मीम, फहद, साहु, शख्स, सकत, मीम नहीं है इसमें। हमने मीम तो, हाँ जी ठीक है, तो और जौ है। अभी ये भी हमने, ठीक है ठीक है, अब मुझे पता चल गया, हरूफ नितैया और हरूफ लिस्विया अभी रहते हैं, ठीक है। और हरूफ शफिया भी। टाइम क्या हो गया, 11 हो गए, ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो हरूफ लिस्विया जो है, हरूफ नितैया जो है, इनमें से फहसा हुई शख्स, सकत, ता आ गई उधर, और दाल और ता हरूफ जहर है। दाल और ता, दाल जो है, दाल में हम क्या देखते हैं कि दाल दाल जुबान की नोक किधर लगती है, अद, अद, दा, अद, दा, दो ऊपर वाले दांतों के जो जड़ है वहां पे, वो बम्पी सा एरिया जो है, जड़ पे जो लगती है जाके, ठीक है। अद, दा, अद, दा। तो बिल्कुल वो जैसे मैंने रा था उसके लिए भी बिल्कुल सकेड़ के नहीं लगाना, और इसको दाल के लिए दो 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 ऐसे नहीं खाना। दा मोटा भी नहीं है, ये बारीक है, बहुत आसानी के साथ इसको अदा करना है, वरना इसकी भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि दाल है ना, तो वो दाद की तरफ भी इसको मोटा नहीं कर देना, ठीक है। मोटा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब बहुत फैला हुआ जो होता है दाल, दाल उर्दू वाला जो होता है, हमारा उर्दू वाला दाल जो है बहुत फैला हुआ आता है। क्यों फैलता है, क्योंकि हम बिल्कुल आगे से अदा कर रहे होते हैं। दाल दाल जो गम एरिया के भी आगे, जो जब अपनी जबान की नोक जो है अपने ऊपर वाले दांतों की वो जड़ से लगाकर ना पीछे की तरफ लेके जाइए, उसको जड़ से शुरू करें, ऐसे तो वो जो बम्पी सी एरिया होते हैं वहां से अदा कर रहे होते हैं। जो दादा, जैसे आप दादा कहें तो वहां से अदा हो रहा होता है, जी हमारे उर्दू की बात मैं कर रही हूँ। तो अरबी वाला दाल ऐसा नहीं है, ठीक है। अरबी वाले दाल में हमने फर्क करना है। अरबी का दाल कहाँ लगता है हमारा, वो जड़ पे ही लगता है, जो दरमियान वाली लाइन सी है दो दांतों के दरमियान, उधर जाके दाल लगता है, और ता और ता तीनों ही उधर जाके लगते हैं, लेकिन तीनों में फर्क है। तो इसको जुबान की नोक को जरा सा ब्रीक करके इस्तेमाल करते हैं, और हवा को बाहर निकलने की जगह पे नहीं मिलती। दाल, दाल, ये मोटा हो गया है ना, मोटा नहीं दाल, ये निकालने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये तो बहुत आसानी से लग रहा है, दाल दाल अद दा,
ये भी दरमियानी सी हिट है इसकी, बहुत मोटी नहीं है और यानी बहुत सख्ती से भी नहीं है और बहुत कमजोरी से भी नहीं है, वरना कमजोरी होगी तो हवा बाहर निकल जाएगी। तो फिर आ गई तौ। तौ में गलती क्या होती है, ता पाट देते हैं, ता ता, वो फैलाकर जुबान को फैला देते हैं थोड़ी सी। एम, फैलाने के अलावा जो है जुबान की जड़ नहीं पीछे से तौ के लिए उठ रही होती, जिसकी वजह से ता पाड़ रहे होते हैं, ता। तो तौ, 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 अत्ता, अत्ती, अत्तू, अत्ता, अत। अब इसमें सख्ती से जुबान जाके लगती है, ठीक है, जुबान की नोक आगे से जाके सख्ती से मजबूती से लगती है, ठीक है। लेकिन ये है कि इन दोनों को हिट करने का तरीका सेम ही है, सिमिलर है। तालू की तरफ आवाज का प्रेशर होता है, होना चाहिए, बल्कि जो हल्के ऊला है ऊपर वाला उसकी तरफ ना हो, हल्की की तरफ ना प्रेशर हो, यानी पीछे की तरफ ना हम डालें। दौल, दौल जब पीछे की तरफ डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रेशर कहाँ होना चाहिए, हमारा तालू की तरफ आवाज का प्रेशर, दा, दा, पा, पा। ये दाल और ता मैं बोल रही हूँ। अब हरूफ लिस्विया है। ता का और ता का जो है ये बहुत कॉमन गलती है कि ज्यादा लोग ता पढ़ रहे होते हैं। जो दो नुक्ते वाली ता है जो हम्स है, हम्स की है, तो जाहिर है जब गलत हरफ पढ़ दिया तो फिर उसकी सिफत भी तो गलत होगी ना, जो हरफ पढ़ा उसकी सिफत उसके साथ आएगी। अब ये नहीं हो सकता कि पढ़ा आपने तौ हो और सिफात उसकी हम्स वाली हो जाए। यूं ही हमसाया आपका ऑटोमेटिकली बिगड़ गया, क्योंकि आपने ता पढ़ी है, तौ नहीं पढ़ी, ना आपने जुबान को पीछे से उठाया है। जुबान को ही पीछे से उठाना जो है, यही इसका फिर पता चलता है कि जी हम तौ पढ़ रहे हैं कि या ता पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब हम जुबान को भी पीछे से उठाया होगा हमने, तो एक गड़ा बनता है, एक कप शेप बनती है जुबान के दरमियान में, यानी जुबान नीचे डूंगी हो जाती है, नीचे चली जाती है जुबान दरमियान से। तो फिर प्रेशर जो है वो तालू की तरफ होता है, आवाज जो है, आवाज का प्रेशर तालू की तरफ जाता है। तो आगे आते हैं हम हरूफ लिस्विया। हरूफ लिस्विया जो है, इनमें सा हमारा उधर था, फहसाहु शख्सुन सकत में सा था, अब वो निकल गया, हम्स का था, दाल और ज़ा रह गए। इनमें भी दाल और ज़ा दोनों में जहर पाया जाता है। जो सा है इसमें रिखावा भी होता है, जो अभी हमने किया नहीं है, और हम्स भी होता है सा में। लेकिन दाल और ज़ा जो है, इसमें क्या है कि जहर है। जुबान की नोक और ऊपर वाले दो दांतों का सिरा, जुबान की नोक थोड़ी सी बाहर भी नजर आ रही होती है, लेकिन बहुत सारी बाहर नहीं लटकनी चाहिए। हवा को रोकना है, टिप जो है इसकी जुबान का आगे वाला किनारा शार्प करके, जरा सा तीखा करके ऊपर वाले दो दांतों को कवर करता है, लेकिन बिल्कुल नहीं। कई दफा जब ऊपर वाले दो दांतों को आपने उसको थोड़ा सा समेट के कवर करके लगा लिया ना जुबान का किनारा, तो क्या होगा, ये आपको सिर्फ ऐसा लगता है जब थोड़ा सा हिस्सा लगा, यानी कि दांतों के थोड़े हिस्से से लगा, जब बिल्कुल ही जरा सा टच किया तो ऐसे मुंह गोल कर दिया। लेकिन अब मुंह गोल क्यों हुआ, क्योंकि पीछे से जुबान की जड़ को जा के लिए उठाते हैं, और अगर जा को जाल से मिला दिया तो जुबान की जड़ को पीछे से उठा दिया, जा करते हुए। तो ये मोटा नहीं है, जाल जाल बारीक है, ठीक है, जाल बारीक है। जा, नरमी से, नरमी से लगाना है, ये दोनों के लिए नरमी से वहां पे लगाना है। मोटाई टाइप जा के लिए आती है, क्योंकि जा जो है ये भी बहुत यानी कि क्या कहते हैं इसको कि ऊपर वाले दांतों को, हवा को रोक के रखना है, हवा नहीं बाहर आनी चाहिए दोनों में। अब
ذا अद अद ذا और जाल स्माइली लेटर, बिल्कुल स्माइली मुंह हो जाल के लिए, और जा के लिए मुंह स्माइली नहीं होता, थोड़ा सा हुआ होता है वो, क्योंकि जाहिर है जुबान की जड़ ऊपर उठी होती है, तो थोड़ा सा करवट ली होती है उसने, राउंड की तरफ गया होता है। इंशाल्लाह ताला ये ये तीनों में इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे, ये तीनों रिखावा में ये तीनों आ जाएंगे मुकम्मल तौर पर, आवाज इनकी जारी रहेगी। तो इंशाल्लाह ताला तरफुल लिसान से फिर जब हम देखते हैं कि 11 हरूफ अदा होते हैं और मखरज 5 हैं इनके, यानी 5 निकलने की जगह है जिनमें से 11 हरूफ निकलते हैं। क्या है? तरफुल लिसान। तरफुल लिसान हमने अभी खत्म की है। ठीक है। ज़ा में फर्क क्या करना है कि जा भी नहीं कर देना इसको, जा वो सीटी नहीं ले आनी, जो कि जा क्या है, हरूफे सफीरिया में से है, जा सीन और सौद, जा सीन और सौद हरूफे सफीरिया में से है, इनको अभी हमने करना है। तो इनमें दांतों को मिलने नहीं देना। क्या? दोनों दांत तो यानी नीचे वाले दांत भी ऊपर नहीं लेके आने, अगर ऊपर लाके मिला दिया, दा दा कर दिया, तो ये दोनों जगहों पे लग रहा है, नीचे वाले दांतों से भी जुबान लग रही है नीचे से, और ऊपर वाले दांतों से भी, इससे बचाना है, ये गलती है इनकी। हरूफ लिस्विया की गलती क्या होगी, अगर ऊपर नीचे वाले दांत भी ऊपर ले जाएंगे थे, यानी जबड़ा ऊपर ले जाएंगे तो ये गलती हो जाएगी, इसको गलती से बचाना है, मिलने नहीं देना इन दोनों को, पीछे ही हटा के रखना है। द द द ये द वाली द में पढ़ रही हूँ। तो हरूफ सफीरिया आगे आगे, हरूफ सफीरिया में हमने क्या किया था, सीन स्वाद और फहसाहू शख्सुन सकत, ये सीन और स्वाद दोनों उसमें चले गए थे, हमस लेटर है। जा जहर लेटर है, जा में सख्ती पाई जाती है, जा में सीटी पाई जाती है, जा में अज अज जा, जरा सा इसको यानी कि सख्ती से जरा लगाया जाता है, अज्जा अज्जा, तो हवा क्या है, रुक जाती है। अज जब हम कह रहे होते हैं, सीटी तो आ रही होती है, अज अज, लेकिन वाइब्रेशन भी हो रही है, लेकिन हवा बाहर नहीं आ रही। जब हम जा कहेंगे, अज्जा अज्जी अज्जु, अब ये जा और तौजा वाली जा जो है उसको मिक्स नहीं करना, ना जाल से मिक्स करना है तौजा वाली जा को, और ना ही इस जा से मिक्स करना है, क्योंकि ये फिर उसका मखरज बदल जाएगा और लेटर हम और कोई पढ़ देंगे इसमें, क्योंकि अब जाहिर है जाल भी, जौ भी, जा भी तीनों ही हरूफे जहर हैं, जहर में ही आए हैं, और तीनों की आवाजों में फर्क है। अगर हमने तीनों की आवाजें इकट्ठी कर दी या एक को दूसरे की आवाज से पढ़ दिया, तो जाहिर है जो उसका फिर सिफात होगी वो ही आएंगी ना जिस लेटर को पढ़ा होगा। तो इसलिए इसको बचाना है हमने कि कोई और मखरज इसका ना बन जाए, किसी और घर में तौज़ा वाली ज़ा को ना भेजते हैं इंशाल्लाह। तो हरूफ सफीरिया है, इसमें सीटी पाई जाती है, जा में ज़ा नहीं पढ़नी है, इसको जुबान की जड़ को भी पीछे ऊपर ऊपर नहीं उठाना पीछे से, ना मुंह गोल करके पढ़ना, ज़ा ज़ा नहीं करनी, क्योंकि ये मोटी नहीं है, ये बारीक लेटर है। ठीक है। जाल की तरह जा भी बारीक लेटर है। अब आ गया इसमें जिप्पी साउंड, हम कहते हैं ना जिप्पी साउंड पाई जाती है, तो हरूफे शफातैन, हमारा जुबान का सिलसिला खत्म हो गया, अब हमारा शफातैन आ गए। बस उम्मीद है कि आज हम इसको कवर कर लें ताकि हम दूसरा सेट पढ़ सके, बस एक ही रहता है जहाँ पे थोड़ा हरूफ शफातैन है, तीन लेटर शफातान से हैं, यानी इसके 2 सेट बनते हैं ना,
बा मीम और वाव का एक सेट और फा एक अपना सेट है उसका। बा मीम और वाव जो है ये जैसे बा अब बा अब बहुत नरमी से लगा के नरमी से हिट होता है, जनी के बस लगा देते हैं जाके। अब बा अब बा दरमियाना सा, ठीक है। अब बा नहीं करना, सकता है, सख्त हिट नहीं है। तो कहाँ लगती है अब बा, जुबा सॉरी, दोनों होंठ, दोनों होंठों का गीला हिस्सा एक दूसरे से लगता है और हवा को ट्रैप कर देता है, बंद कर देता है, मुंह बंद हो जाता है। क्यों? जाहिर है होंठ एक दूसरे से लगे हुए हैं, अब अब मिले हुए हैं, बस बहुत आसानी से। अब मैंने छोड़ना है बा, अगर मैंने जज्म वाली बा पढ़ी तो ये हरूफ कलकला है। जैसे दाल भी, दाल का मुझे बताना भूल गई मैं कि दाल भी हरूफ कलकला था। तो 5 हरूफ कलकला है, इंशाल्लाह उसका भी हम करेंगे। वैसे मुझे पहले करना चाहिए था कलकला और लीन वगैरह बतानी चाहिए थी, सिफात, फिर हम सिफात की तरफ जाते। तो लेकिन ये है जी सिफात, मैंने सोचा कि रमजान से पहले पहले आपकी हो जाए इंशाल्लाह, ताकि आप मुखारिजुल हरूफ और सिफातुल हरूफ का ख्याल रखते हुए हर हर्फ को अदा करें। कलकला तो इसमें आ ही गया है। कलकला क्या है कि जब भी कुतुबुजद्दीन में से लिख लें आप, कुतुबुजद्दीन में से कोई भी हर्फ पढ़े जज्म के साथ, जब ये जज्म के साथ आएगा, शर्त यही है कि जज्म हो इनके ऊपर, तो इनके ऊपर कलकला होगा। कलकला क्या है कि हिट करके फौरन ही छोड़ देते हैं, मखरज को छोड़ देते हैं और आवाज बाउंसी होती है, जैसे गेंद दीवार पर मारे तो एक आवाज आती है, वो आवाज पैदा होती है इससे। तो आवाज पलटती भी है इसकी तरफ। अब 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 बा, अब कलकला, बा बा जबर बी, अब बा, अब बी, अब बू। ये हो गया। बू के लिए होंठ गोल भी होने चाहिए। मीम आ गई। मीम के लिए नून की तरह ही बिल्कुल ये है कि ये मॉडरेट सा हिट है, दरमियानी हिट, बहुत सारा नहीं लगता। मीम मीम खुश्क हिस्सों से, दोनों होंठ के खुश्क हिस्से आपस से मिलते हैं। मीम मीम ये भी आसानी से मिलाई दी जाती है, सख्ती नहीं करनी है इसके ऊपर, थोड़ी सी मॉडरेट सी है। मीम मीम मीम। अम, अगर आप करेंगे अम होंठों को बिल्कुल अंदर ले जाके सख्ती करेंगे तो ये गलत होगा। अम अम कोई भी अब्बा भी होंठों को अंदर नहीं ले जाना, जब होंठों को अंदर ले जाते हैं तो ये गलती हो जाती है। कोई भी बा के लिए होंठों वाला कोई भी हर्फ हो उसके लिए, तो मीम को भी और बा को भी होंठों को अंदर नहीं ले जाना, क्योंकि ये होंठों के खुश्क हिस्से से जहां औरतें लिपस्टिक लगाती हैं वहां से अदा होती है, एक दूसरे से मिलते हैं और जब मिल जाती हैं तो हवा ट्रैप हो जाती है, आवाज ट्रैप हो जाती है। अम अम किधर गई? गुन्ना बान, ये गुन्ना का लेटर है, नून भी गुन्ना का था, तो आवाज नाक से होके बाहर आ गई हवा के साथ, हवा भी उधर चलेगी। पहले रुका, अम में रुकता है, और माँ 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 में आवाज नाक, माँ में पहले बंद होता है ना, मखरज बंद होता है फिर खुलता है, ठीक है। माँ, मी, मू, मुंह, इस तरह। मुंह में थोड़ा सा क्या होता है कि क्योंकि पेश है तो उसमें होंठ थोड़े से गोल होते हैं मुंह में, मुंह, तो आवाज और हवा उधर से आ रही होती है बाहर, तो ये भी जहर का लेटर है। वाव आ गई। वाव जो है, वाव के लिए होंठ गोल करते हैं, है ना। वाव जो है, वाव के लिए होंठ गोल करते हैं। आऊ, तो रोकते हैं ना हवा को, आवाज को रोकते हैं। आऊ, आई, आई जो है ये लीन है। आऊ, आई, ये दोनों लीन लेटर है। आऊ, आई, दो ही इसमें आते हैं, आऊ और आई, ठीक है। इसमें पेश वाली वाव जब आएगी तो ऊ, वू कहा जाएगा। अगर हमजा है पेश तो वो होगा मद लेटर। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ पेश है वाव के ऊपर तो हम पेश की बात कर रहे हैं, जहां पे मदिया की नहीं, वाव मदिया की नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन वाव मदिया जब होगी तो क्या होगा? ऊ,
اور جب واو پیش والی ہوگی تو وو آواز اس کی اصل ہوگی، جب پیش ہوگی اس کے اوپر پھر او کی آواز نہیں آئے گی، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے پھر وو 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 وو، وہاں پہ رکتی ہوئی آواز، کیونکہ جہر لیٹر ہے تو رکتی ہوئی ہوا بھی اور آواز بھی رکتی ہے، پھر اس طرح ٹریپ ہو جاتی ہے تھوڑی سی. انشاءاللہ تعالی کوئی لیٹر، مجھے امید ہے کہ میں نے سارے لیٹر کور کر لیے ہیں، کوئی لیٹر رہا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی آج ہمارا یہ ختم ہو گیا. الحمدللہ الحمدللہ. یہ واو جو ہے اس کی آؤ وا آؤ وی آؤ وو آؤ وو. میم ایکسکیوز می میم، یہ آپ کا فا رہ گیا نا حروف شفویہ کا. او جزاک اللہ خیر، میں نے سوچا کر لی. فا جو ہے وہ بھی حروف شفیہ ہے، لیکن فا کے لیے زبان، سوری زبان نہیں، ہونٹ، نیچے والے ہونٹ کا فحسہ شخص سکت. ہاں وہی، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، وہ تو چلا گیا اس میں، پھر وہ قصہ تمام ہو گیا. انشاءاللہ ہم ختم کر جی جی دیتے ٹھیک ہے، ہیں. اوکے جزاک شکریہ. اللہ خیرن، کیونکہ آپ نے جب کہا تو میں نے ایک دم سوچا کہ فا تو اس کو میں نے ذکر ہی نہیں کیا، پھر بعد میں تو فا ہمس میں چلا گیا، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم نے کل کر لیا تھا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں، ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا. آج آپ کو یہ پورے مل گئے ہیں ہمس اور جہر کے. جب آپ نے اب اس کی کرنی ہے پریکٹس تو کیا کریں گے، الفابیٹ آگے رکھیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے الفابیٹ، ان کو آگے رکھیں اور پھر ان کی پہچان کریں. یاد وہ فریز یاد ہونی چاہیے، فحسہ شخص سکت. دوسری بات یاد کیا ہونی چاہیے، ہوا جو ہے اس کا تعلق ہوا سے ہے. ٹھیک ہے، ساؤنڈ سے ہے، جائے ساؤنڈ ٹریپ ہوتی ہے، ہوا ٹریپ ہوتی ہے یعنی بند ہوتی ہے، یا پھر باہر نکلتی ہے. تو جب آواز بند ہوتی ہے تو سانس بھی بند ہو جاتا ہے، وہ ہوا بھی بند ہو جاتی ہے. جب آواز باہر آتی ہے جو ہمس کے لیٹر میں ہے تو سانس، ہوا جو ہے وہ بھی سانس جاری رہتا ہے سکت کی طرح. تو اس طرح ہم ہوا بھی پھر باہر نکل جاتی، کیونکہ ہوا کو پھر رکاوٹ نہیں ہے تو ظاہر دروازہ کھلا ہے تو ہوا تو جلدی سے فور کر کے نکل جائے گی نا. انشاءاللہ تعالی اس طرح ہم نے اس کو یاد کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی بہن کو 10% بھی سمجھ آ گئی ہے تو میں اپنے آپ کو سمجھوں گی کہ میں نے کچھ حق ادا کیا ہے. اس کی پریکٹس سے، سمجھ سے، بار بار سننے سے پھر آپ کو ان کا پتہ چلے گا، اور آگے دینے سے. یوں ہی آپ نا کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی بھی نہ ہو سامنے تو دیواروں کو پڑھا دیں، تو دیواروں کو پڑھائیں. اگر کوئی سامنے مل جاتا ہے تو الحمدللہ اپنے آپ بنائیں، ساتھی کو لیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پریکٹس کریں. جزم والے کی بھی کرنی ہے، کیونکہ جب آپ شاد کو علیحدہ علیحدہ لکھتے ہیں نا تو اس طرح آپ لکھ کے پھر اس کو، جیسے اب کیا میں مثال دوں، جو ہے نا کلکلے والے لیٹر، ان کے اوپر تو جو ہی آپ شاد والا علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں تو پہلے کلکلا چھوٹا آتا ہے. اب جیسے اج اج اجا، پھر ہولڈ رہتا ہے وہاں پہ شاد کہنے کے لیے. تو ان کو جزم بھی لگائیں، حمزہ یعنی الف کے اوپر زبر دیں، آگے جزم لگائیں، پھر آگے حرکت والا لیٹر لکھیں. حرکت کیسے، زبر زیر پیش تینوں لکھیں اور پھر اس کو جیسے میں پڑھوں اد دال، اد 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 دا، اد دی، اد دو. اس طرح آپ اگر اس کی پریکٹس کریں گے، اب اد میں دال میں بھی کلکلا ہو رہا ہے. یہ با کلکلا لیٹر ہے، جیم کلکلا لیٹر ہے، دال کلکلا لیٹر ہے، اور ہمارا قاف کلکلا لیٹر ہے. اجیدو قطن بقت میں با کلکلا لیٹر ہے، میں نے بتا دیا، اور قطن یہ تو کلکلا لیٹر ہے. ٹھیک ہے، یہ 5 کلکلا لیٹر ہیں، با، جیم اور دال، تو اور قاف. انشاءاللہ
جی ہمارے کلکلا لیٹر بھی ہو گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے میم لیے آسانی پیدا کرے. جہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں کلاس کو. میم ایک چیز پوچھنی تھی جی کہ جو قلقلہ آپ کہہ رہی ہیں، جیسے ہم نے سورہ اخلاص پڑھی تھی جس میں ہر آیت کے بعد مطلب احد کلکلا اور ہوتا ہے، تو وہ قلقلہ ہوا تھا، وہی اس کو کلکلا کہہ رہی ہوں، ہوتا میں ہے. پوچھ رہی ہاں ہوں. جی وہی ہے. میں نے جی اس وقت بتایا تھا کہ آواز کو جی باؤنس جی کرنا ہے، کلکلا ہو رہا ہے. جی میں ٹھیک بتا ہے. تو چکی ہوں، ساتھ ساتھ میں بتاتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس کو تھوڑا میں نے ایز اے کلکلا ابھی کور نہیں کیا. جب ہم جی جی قرآنی قاعدہ پڑھیں گے نا تو قاعدے میں وہ آئے گا، حروف انشاء لین اللہ. بھی آئے گا. جیسے میں آج کہہ رہی تھی لین کی طرح اس کو جی لین سے مجھے اس کا علم بھی پہچاننا ہے، نہیں ہے. لین سے پہچاننا ہے. جیسے میں حروف لینیا کا بھی تھوڑا آج بتا دیا ہے میں نے کہ لین سے پہچاننا ہے. اس کی صفت لین ای نہ این، جیسے وہ واؤ ہے نا آئی، اور کیا کون سا ہے یا آئی یا میم آئی وہ یا. شازیہ کہہ رہی ہیں نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. ہاں جی میں نے ویسے بھی ختم کرنے لگی تھی، تو یہ میں نے تھوڑا سا بتانا بارک تھا اللہ. کہ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین یا رب العالمین.